Hello. I get all my Hello guys, welcome back to Education. I hope all are doing great. If I'm audible, please tell me कि हाँ आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो. Till the time I'll read a quote for you. There are two kinds of people: those who say I will believe it when I see it, and those who say to see it I know I must believe it. Interesting. Did you understand it? I'm going to read it again. There are two kinds of people. ठीक है, दो टाइप के लोग होते हैं. Those who say I will believe it when I see it, मैं तब यकीन करूंगा जब मैं देख लूंगा. ठीक है ना? This is more so with the thought process. ठीक है. और एक होता है जो कहता है to see it I know I must believe it. Like for example, if you have to clear an exam, ठीक है, लोग कहते हैं कि I will believe in it that I have done it once I'm done with it. Till then I will be in doubt, I will be in fear, I will sulk, right? और एक होता है no, I believe in myself, I believe in that higher power कि मेरे साथ जो होगा ना वो बढ़िया ही होगा. ठीक है, तो it's all about being positive, it's all about that thought process which is required very very much, but we tend to neglect it. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस. इंडिया सेंड्स रिलीफ गुड्स टू सिविलियन पॉपुलेशन ऑफ पैलेस्टीन. गाजा स्ट्रिप के अंदर इंडिया ने सामान भेजा है. ठीक है, इजिप्ट के हैज डिलीवर्ड द इजिप्टियन रेड क्रीसेंट एट एल अरिश एयरबेस ऑफ इजिप्ट. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सोल्जर पोस्टेड एट सियाचिन ग्लेशियर फर्स्ट अग्निवीर टू बी किल्ड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी. लाइन ऑफ ड्यूटी में now there is a sentence that can be formed for from here English का. Normally हम कहेंगे हमें लगेगा कि at ना आना हो, but in आएगा. killed in the line of duty could be a good fill in the blanks जो है वो बन सकता है. ठीक है, तो just pointing her out for the sake of it. Which is sad again. Gawat Akshay Lakshman deployed at Siachen Glacier, the world's highest battlefield, has become the first Agniveer to be killed in the line of duty since the Agnipath scheme for the recruitment of soldiers was introduced. तो यहाँ पे he the first one who has died like this. तो इसके अंदर सबसे पहले हमें दो पॉइंट्स नोट करने हैं. एक तो गवाते अक्षय लक्ष्मण deployed at Siachen Glacier, the world's highest battlefield, has become the first Agniveer to be killed in the line of duty. ठीक है ना, line of duty में the person got killed. Now he's the first one who died like this. ठीक है ना, अग्निवीर killed in the line of duty. अब यहाँ पे जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल सकता है वो निकल सकता है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है. ये क्वेश्चन भी निकल सकता है. ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि देखो उनको क्या मिलेगा बिकॉज ही हैज डाइड, व्हाट हिज फैमिली इज गोइंग टू गेट एज पर द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऑफ अग्निवीर इन केस ऑफ डिमाइस. उनकी डेथ के केस में एज अ बैटल कैजुअलिटी द नेक्स्ट ऑफ किन रिसीव ₹48 लाख नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस एंड एक्स ग्रेटिया ऑफ ₹44 lakh and the 30% of the salary contributed by Agniveer to Seva Nidhi scheme with equal matching contribution by government plus interest.
This will be also get the balance pay owed from the date of death till the completion of 4 years. ठीक है, but यहाँ and a contribution of 8 lakh from armed forces battle casualty fund. This is what his family would be getting. अब यहाँ पे ये it is being criticized कि pension क्यों नहीं लगाई जा रही. What is pension? Pension is monthly, कुछ monthly payment भी देना चाहिए family को. That is being criticized by people. क्या हमको याद रखना है कि क्या मिलने वाला है? नो, हमको ये नहीं याद रखना. ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कन्वेंशन दोबारा से रिवाइज करेंगे. हमने वेना कन्वेंशन के बारे में पढ़ा था. वेना कन्वेंशन 1961 में अडॉप्ट हुई थी, इंडिया ने रेटिफाई करी हुई है. एंड दिस कन्वेंशन इट इज़ अबाउट द इम्यूनिटीज़. जो डिप्लोमैट्स हैं उनकी इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं. हमने ये क्यों बात करी थी न्यूज़ के अंदर? क्योंकि कनाडा वालों ने बोला कि इंडिया जो 41 डिप्लोमैट्स हमारे निकाल करके कनाडा भेज रहा है इंडिया, वो गलत कर रहा है. ठीक है, वो वेना कन्वेंशन को ब्रेक कर रहा है. ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ. वेना कन्वेंशन को ब्रेक कर रहा है, राइट. बट एक्चुअली वो वेना कन्वेंशन को नहीं ब्रेक करा. इंडिया कहता है कि मैंने कोई ब्रेक नहीं किया वेना कन्वेंशन. तो इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि कनाडा ने ब्रेक किया है वेना कन्वेंशन. कैसे ब्रेक करा? जैसे ही खालिस्तान का एजेंडा उठा थोड़ा सा इंडिया के अंदर, ठीक है ना, all over world, in some countries like that of USA, UK, Australia and Canada being the first, बहुत ज़्यादा जहाँ पर हुआ, वहाँ पर लोगों ने हमारे डिप्लोमैट्स, इंडियन डिप्लोमैट्स, इंडियन एम्बेसी पे जाके अटैक्स किए हैं. हमारे फ्लैग को वहाँ से हटाने की कोशिश करी गई, कहीं कहीं हटा भी और फिर वापस लगाया गया. हमारे डिप्लोमैट्स पे अटैक हुए हैं. कनाडा एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे डिप्लोमैट्स की पिक्चर्स लेकर घूमे गए और बोला गया कि ये इन्होंने मारा है. ठीक है, ये सब कुछ किया है. तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला वी हैव नॉट वायलेटेड वेना कन्वेंशन, इट इज़ कनाडा हु हैज़ वायलेटेड वेना कन्वेंशन. जो किसके बारे में बात करती है? जो खुलकर बात करती है इम्यूनिटी के बारे में, जो खुलकर बात करती है प्रोटेक्शन के बारे में. ठीक है ना, हम तो तुम्हारे वालों को सही सलामत वापस भेज रहे हैं इज्जत समेत, तुमने हमारे वालों को तंग किया है. दैट इज व्हाट द मिनिस्टर वांट्स टू से. क्या इसमें से हमको कुछ नोट करना है? नहीं. अगर आपने वेना कन्वेंशन बाय चांस उस दिन नोट नहीं किया था तो यहाँ पर ये नोट्स पढ़े हैं, ये प्लीज नोट कर लीजिएगा. इसके अंदर से आपको ये कब अडॉप्ट किया गया, किस बारे में बात करता है, इंडिया ने रेटिफाई किया हुआ है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको 3 यहाँ से नोट कर लेनी है. ठीक है, और बाकी सब अगर आप पढ़ना चाहते हो यू कैन स्टडी. उसके बाद आगे चलते हैं. आदित्यनाथ, दैट इज योगी आदित्यनाथ, हु इज द सीएम ऑफ यूपी, फ्लैग्स ऑफ 51 बसेस अंडर मिशन महिला सारथी. बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि दी क्या स्टेट न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है? अगर आप बहुत सारे मतलब अगर जो भी आपको एग्जाम देना है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे 5-6 ईयर्स के, तो आपको वहाँ पे स्टेट की न्यूज़ भी दिखेगी. आपको वहाँ पर दिखेगा कि एक पर्टिकुलर स्टेट का कोई स्कीम पूछा गया है और ये पूछा गया है कि बताओ अच्छा ये कौन सी स्टेट की स्कीम है और इसमें क्या हुआ. ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है ये उत्तर प्रदेश की स्कीम है. हैज फ्लैग्ड ऑफ 51 स्टेट ट्रांसफर. गाइस आई एम यॉर्निंग, आई नो आई नॉर्मली डोंट यॉर्न. तो यहाँ पर वेर आई एम लिविंग वहाँ पे बिल्कुल पीछे रामलीला चल रही है, and it goes on till 4 o'clock in the morning. Starts at 9, goes on till 3 or 4 in the morning. Gosh, I have not slept in last week. I mean, it's terrible. Legit terrible. I just want to go to a place and sleep for 2 days. That's the time I've never seen. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एग्जाम्स में नहीं फील होता है हैवी हैवी, वैसा फील हो रहा है. I am just taking 2 to 3 hours of sleep every day and I feel so tired. So I'm sorry. बट हम पढ़ाई करेंगे. ठीक है, अंडर मिशन महिला सारथी ऑन द ओकेजन ऑफ दुर्गा अष्टमी इन अयोध्या. तो यहाँ पे 51 ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बसेस फ्लैग ऑफ करी गई. दीज बसेस विल हैव वुमेन ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स. ठीक है ना, इसके अंदर क्या है? दीज बसेस, ठीक है, कौन सी? स्टेट कॉरपोरेशन, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन buses flagged off. Buses will have पायल राठौर. मैम मैं हमेशा ऑफलाइन क्लास लेती हूँ. पायल, थैंक यू फॉर वॉचिंग.
Thank you so much for being consistent. Buses will have women drivers and conductors. ठीक है ना. तो यहाँ पर मिशन महिला क्या है, यूपी का मिशन, यूपी यहाँ पे हमने लिखा है नहीं, उत्तर प्रदेश की स्टेट स्कीम है. तो हमारे पास 3 पॉइंटर्स हैं जो हमें याद रखने हैं. सबसे पहले स्कीम का नाम मिशन महिला सारथी. सारथी कौन होता है, जो चलाता है ना. पहले रथ चलाते थे तो वो सारथी होते थे, अब यहाँ पे रथ नहीं है तो अब क्या है, बस है. ठीक है, तो यहाँ पे सारथी कौन है, हु इज द ड्राइवर, महिला. ठीक है, बसेस जो हैं वो वुमेन चलाएंगी. स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसेस कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में. Staged now extremely severe cyclone over the Arabian Sea. Yellow alert issued for 8 districts in Kerala. ठीक है, अब जब तेज लैंडफॉल करेगा, द वेरी सिवियर साइक्लोन तेज दैट फॉर्म्ड ओवर अरेबियन सी. ठीक है, तेज कहाँ पर आ रहा है, आर्या में जो उसके सुष्मिता सेन का हस्बैंड होता है उसका भी नाम तेज है. यस, आई एम अ बिग फैन ऑफ सुष्मिता सेन. द वेरी सिवियर साइक्लोन तेज. ठीक है, साइक्लोन तेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, अरेबियन सी. ठीक है, अभी देखते हैं लैंडफॉल कहाँ पे करता है. जहाँ पे लैंडफॉल करेगा तो वो नोट करेंगे. हम भूल गए, फिर मुझे याद आया, सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज द नेम ऑफ द केस, जहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को बोला गया, सेम सेक्स मैरिज के बारे में बात करिए. प्लीज लिख लीजिए, सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेम सेक्स मैरिज, जिसमें कोर्ट ने क्या कह दिया कि भैया हमारे हाथ में तो नहीं है. ठीक है, तुम जाओ पार्लियामेंट को बोलो. ठीक है ना. यार बहुत बुरा हाल है नींद से, सीरियसली, हे भगवान कहाँ जाएं. चलो, सो वी हैव इट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सुप्रियो चक्रवर्ती. देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू मैरी इट होल्ड्स ऑन दैट अकाउंट द कोर्ट. अब यहाँ पे जो ऑर्डर है वो बहुत ही दुखी है. वो कहता है ऐसे कैसे कह दिया कि राइट टू मैरी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट टू मैरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. क्या कहा है, इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, तुम्हारे घर वाले अगर नहीं मानेंगे ना शादी करने से तुम्हारे प्रियवर से, भैया फंडामेंटल राइट नहीं है. ठीक है, हाउएवर टू द क्रेडिट ऑफ द कोड इट डायरेक्टेड यूनानिमसली दैट सेम सेक्स कपल्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी हरासमेंट. द कोर्ट आल्सो पास डायरेक्शन टू सेंसिटाइज द अथॉरिटीज ऑन दिस बिहाफ एंड इवन डायरेक्टेड द सेटिंग अप ऑफ अ कमिटी टू लुक इनटू नंबर ऑफ इश्यूज. सॉरी आई एम सो सॉरी. तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, सेंसिटाइज का मतलब क्या होता है, सेंसिटाइज का मतलब होता है कि किसी को किसी चीज़ के बारे में बताना. ठीक है ना, जैसे अब तुम लोगों में से थे, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि मैम सेम सेक्स मैरिज जो है ना वो होनी नहीं चाहिए. ठीक है, हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है इस चीज़ की, तो नहीं होनी चाहिए, है ना. बट मैंने आप लोगों को बोला कि अच्छा चलो तुम्हारी ये ओपिनियन है, बट एक बात सोचो, क्या वो हमें कुछ कह रहे हैं. ठीक है, अगर उनको जो करना है वो करेंगे. ठीक है, अगर एक लड़का लड़का या लड़की लड़की है, वो कह रहे हैं हमको आपस में रहना है, साथ में रहना है, तो वो रहेंगे, है ना. हम उनको रोक सकते हैं. अगर हम उनको रोकेंगे वो छुपके से रह लेंगे, हमसे लड़कर रह लेंगे, बट वो रहेंगे, मे बी अपने परिवारों से अलग होकर रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, दुख में रहेंगे. ठीक है, और अगर उनकी मैरिज जो है वो लीगली रिकॉग्नाइज नहीं है तो वो स्टेबल भी नहीं रहेंगे, उनकी लाइफ बड़ी अनस्टेबल सी होगी. एक जो कि अगर एक लड़का लड़की मैरिड है तो वैसे नहीं होगा. ठीक है ना, तो क्यों नहीं वी एक्सेप्ट इट कि ठीक है यार उनकी जिंदगी है, मेरे को इससे क्या फर्क पड़ रहा है. राइट, सो दिस इज सेंसिटाइजिंग अबाउट एन इशू. ठीक है, कभी कभी हमें किसी चीज के बारे में पता नहीं होता. अब जैसे कोई मोटा होता है, ठीक है ना, तो हम उसको ऐसे मजाक में कहते हैं मोटा, है ना, या कुछ भी बोल देते हैं. या फिर कोई अगर नॉर्थ ईस्ट, जिनके मंगोलियन फीचर्स होते हैं, नॉर्थ ईस्ट लद्दाख से कोई आया होता है, हम कहते हैं ले चाइनीज घूम रहा है ना, मोमो घूम रहा है. तो if you sensitize someone and say that okay, which state do you come from, like someone says I come from Punjab, okay, or someone says I come from South India, I come from Karnataka, or I come from Kerala, or any of the South Indian states, or I come from Maharashtra. I did this actually. I said, what if you being a Punjabi, I call you आलू का पराठा. अरे देख आलू का पराठा जा रहा है. If someone is from Maharashtra, I say देख वड़ा पाव जा रहा है. If someone is from Kerala, I say देख इडली सांभर जा रहा है.
We won't like it too, man. So that is sensitizing. That is educating a person about something so that they change their views. Might be they did not change their views because सब कह रहे थे तो हम भी कर लेते हैं वाला सीन हो रहा था. तो कोर्ट ने बोला है कि आप सेंसिटाइज करो अथॉरिटीज को कि भाई सेम सेक्स कपल्स भी होते हैं, ठीक है ना. अब यहाँ पर और डायरेक्ट किया है कमिटी बनाने के लिए जो नंबर ऑफ इश्यूज में देखेगी. ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है. To understand Supriyo Chakraborty, we need to contextualize it in 2009. अब यहाँ पे जितनी भी सेम सेक्स कपल्स से रिलेटेड, ठीक है ना, जो सेम सेक्स कपल्स या एलजीबीटी कम्युनिटी से रिलेटेड जजमेंट्स आई हैं वो डिस्कस करी हुई हैं. अगेन दैट इज इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ पे सबसे पहले नाथ फाउंडेशन, हमें जो याद रखती है वो है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, सेक्शन 377 IPC, a law made by British, a law that criminalized was set that criminalized sex between non-heterosexual couples was punishable. होमोजीनियस सेम, हेट्रो मतलब अलग, ठीक है ना. अब नॉन हेट्रो है मतलब अगर अलग अलग नहीं है, लड़का लड़की अगर के अलावा अगर कोई और कर रहा है तो इट वाज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट. ठीक है, इसको सेट असाइड करा गया कि भाई सेम सेक्स वाले अगर कर रहे हैं तो उनकी मर्जी, ठीक है ना. अगेन सेंसिटाइज दुनिया में अब लोग कहने लग गए हैं, ठीक है. अगर आप मेरी उम्र के लोगों को मिलोगे जिनकी शादी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ हमें लग रहा है कि यार अगर ये LGBTQI कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो वील एक्सेप्ट, क्योंकि वो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ गई है. ठीक है, अब हमारे बाबा दादी जो थे उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि अच्छा हमारे मतलब उनके ज़माने में लव मैरिज होना बड़ी अलग बात थी कि अरे उसने लव मैरिज कर ली, है ना. धीरे धीरे लव मैरिज इतनी कॉमन हो गई, आजकल जो अरेंज करता है उसको कहते हैं ले इसने अरेंज मैरिज करी, है ना. ऐसे ही होते हैं, यस, है ना. हाँ, अब पहले जो लव मैरिज करता था उसकी बातें बनती थी, आज जो अरेंज करता है वो कहते हैं हाँ इसको खुद से मिली नहीं कोई, ये बंदा बंदी खुद नहीं बता सके. होता है ना ऐसे. दिस इज द नॉर्मल टॉक ऑफ द थिंग. धीरे धीरे एक्सेप्टेंस होती है. अब यहाँ पे नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लिया. फिर नालसा की जजमेंट आई, ठीक है. दैट पर्सन्स आर इंटाइटल टू आइडेंटिफाई देयर ओन जजमेंट, ओन जेंडर, कि वो जो भी जेंडर है, ठीक है. दे मे बी बॉर्न एज मेल्स बट इफ दे वांट टू आइडेंटिफाई एज फीमेल्स और ट्रांसजेंडर दे आर इंटाइटल टू डू सो. पर्सन टू दैट द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट वॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट. अगेन हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट हम एज ए सोसाइटी वी आर सो जजमेंटल. हमें मजा आता है एक दूसरे के काम के अंदर नाक घुसाकर, हमें बहुत मजा आता है बिकॉज वी थॉट दैट इज व्हाट इज लाइफ, टू पोक अदर्स. दूसरों को दुखी करने को हमने लाइफ बना लिया, ठीक है ना. बट दैट्स नॉट रियलिटी, वी कैन चेंज. तो यहाँ पे नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब आई हैव फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम LGBTQI कम्युनिटी. अरे यार बढ़िया अपना रह रहे, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुमको क्या दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनसे, ठीक है. बट लोगों को दिक्कत होती है, ठीक है. दैट पर्सन्स आर इंटाइटल्ड, इस जजमेंट क्या कहा, दैट पर्सन्स आर इंटाइटल्ड टू आइडेंटिफाई देयर ओन जेंडर. They may be born as males, but if they want to identify as females or transgenders, they are entitled to do so. ठीक है ना, कि भैया उनकी मर्जी है, ठीक है. तो यहाँ पर ये है, तो ये हमको समझना होगा कि नालसा वाली जजमेंट में कहा था कि जो जिस जेंडर के साथ अगर वो मेल है फीमेल उसको सही लगता है, फीमेल है मेल लगता है तो सही है, ठीक है. कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए. सॉरी. The fundamental
core decision of the Supreme Court in Supriyo Chakrabarti is that there is no fundamental right to marry in India in arriving. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, अब जो ऑर्डर है वो बहुत उसको दुख लग गया है कि यार हम फंडामेंटल राइट नहीं है राइट टू मैरी, मैं बता रही हूँ, ठीक है। या तो इसकी शादी बेचारे की नहीं हो पा रही है, बेचारा बेचारी जो भी है, या इसके बच्चे शादी नहीं कर रहे हैं, कह रहे नहीं शादी से टच्ची हो गया बेचारा। चलो मजाक कर रही थी मैं। तो यहाँ पर व्हाट इज इट, फंडामेंटल राइट कोर्ट ने बोल दिया सेम सेक्स मैरिज वाली में कि देखो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, पार्लियामेंट के पास जाओ। पहली बात ये। दूसरी बात कह दे कि राइट टू मैरी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये तो टच कर गई है इसको, बंदे को, ऑर्डर को, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, यूडीएचआर की पहले फुल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये क्या है, यहाँ पे इन्होंने बताया भी हुआ है, फाउंडिंग डॉक्यूमेंट of all human rights in the world, ठीक है ना। ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है ये। इंडिया सिग्नेटरी टू यूडीएचआर। ये ना मतलब ये इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे इंस्पिरेशन लेते हैं कि ये होना चाहिए, और हमने सिग्नेचर करे हुए हैं, हम कहते हैं हाँ जो ये कहता है हम वो मानेंगे, ठीक है ना। तो आर्टिकल 16 जो है, आर्टिकल 16 ऑफ यूडीएचआर 1948, राइट टू मैरी इज अ ह्यूमन राइट, इज अ ह्यूमन राइट। और वो कह रहे हैं इन्होंने तो साइन किया हुआ है इसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट कहता है राइट टू मैरी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, बट ये तो राइट है, ठीक है, ह्यूमन राइट है यूडीएचआर के अंदर, ये तो गलत किया है। तो हमें यूडीएचआर की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसका ईयर पूछा जा सकता है, इंडिया सिग्नेटरी है या नहीं ये पूछा जा सकता है। इसमें क्या दिया हुआ है, फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है जिसने पहली बार बात करी ह्यूमन राइट्स की, कि हमारी राइट्स क्या हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिस्टोरिंग द इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द हिमालयस। अब हिमालयस की हेल्थ से रिलेटेड क्यों इतने हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, बिकॉज देखो इस बार फ्लड्स ही फ्लड्स आए हैं, ठीक है ना। कोई बहुत कम हिमालयन स्टेट्स होगी जो फ्लड से ना इफेक्टेड हुई हो। पहले हिमाचल में आया, उत्तराखंड में आया, ठीक है, सिक्किम में आया, ठीक है, बहुत सारी स्टेट्स जहाँ पर माउंटेन्स हैं वहाँ पे फ्लड्स आए। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि भैया देखो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे द इन्वायरमेंट डिवास्टेशन कॉज्ड in the Himalayan states of Himachal Pradesh, Uttarakhand and Sikkim has reinvigorated give new energy or strength। तो पहले तो reinvigorated the debate on the carrying capacity of regions। तो reinvigorated का मीनिंग लिख लेंगे give energy to और give new energy। वो कह रहे हैं कि ये जो टॉपिक था कि भैया जो इकोलॉजी है, ठीक है, किसके, इन्वायरमेंट जो है हिमालयास का वो सेंसिटिव है, वो वीक है, ठीक है ना, उसके ऊपर काम करना चाहिए। वो टॉपिक जो है उसको नई एनर्जी नई स्ट्रेंथ मिल गई है, तो इसको ये क्या कह रहे हैं, री इनविगोरेट, ठीक है। अब द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन अ रिस्पॉन्स टू अ पिटिशन फाइल्ड बाय रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैज आस्क्ड द यूनियन गवर्नमेंट टू सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड रिगार्डिंग द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इंडियन हिमालयन रीजन विच इंक्लूड इट्स टाउन्स एंड सिटीज। कितने लोगों को वो रख सकता है, संभाल सकता है, क्या वो कंस्ट्रक्शन हो गई है, क्या वो हिमालय उसमें मतलब वो स्टेट्स इस चीज़ को, इन्वायरमेंट जो है वो बर्डन ले सकता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे अ केस filed in Supreme Court regarding carrying capacity of Indian Himalayan region, that is IHR, which includes लिखने की जरूरत नहीं है। कैपेसिटी क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, कि कितने लोग जो हैं, कितनी कंस्ट्रक्शन, कितने पीपल, ठीक है ना, कितनी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये हैंडल कर सकते हैं ऑफ इंडियन हिमालयन रीजन IHR, ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट एफिडेविट फाइल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट स्टेट्स दैट द डायरेक्टर ऑफ जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट शुड बी द लीड इन असेसिंग कैरिंग
capacity that the carrying capacity of all 13 Himalayan states and UT should be determined. तो यहाँ से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन निकलता है कि सबसे पहले निकलता है कि कितनी स्टेट्स हैं। 13 स्टेट्स हैं, 13 हिमालयन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। टेक्निकल सपोर्ट हो सकती है, तो ये बात करें जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेज भोपाल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री। देखो यार, इसमें से ये पूछ सकते हैं वेयर आर दीज सिचुएटेड, वेयर आर दे सिचुएटेड। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आई थिंक मैंने पहले भी आपको ये नोट करवाए थे, जो इंपॉर्टेंट वाले थे, जिन्होंने रिपोर्ट दे भी दी है एक, और इन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो उत्तराखंड में जो एक टाउन है उससे रिलेटेड दिया, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है। उससे रिलेटेड इन्होंने दी है। उत्तरकाशी नहीं है वो टाउन, या मेरे ऊपर दिमाग घूम रहा है। तो ये अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं पहले भी नोट करवा चुकी हूँ वो टाउन से रिलेटेड। देयर हैव बीन इनिशिएटिव्स बाय यूनियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ IHR, ठीक है ना। ये जो रिसर्च करने को कह रहे हैं कि IHR करिए, इंडियन हिमालयन रीजन का जो कैरिंग कैपेसिटी है वो देखा जाए, वो पहले भी बोल चुके हैं। सम ऑफ देम आर द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, द इंडियन हिमालयस climate adaptation program, secure Himalayan project, and recent guidelines on carrying capacity in the IHR circulated on January 30th, 2020. There was a reminder by the Ministry of Environment and Forest on May 19, 2023, asking all the states that it should study if such a study had not been undertaken, then states should submit an action plan carrying capacity at the earliest. तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर पुश कर रहा था स्टेट्स को, तो ये हम लिख लेते हैं, ये हमने कभी नहीं लिखा है, तो लिखेंगे इनिशिएटिव्स बाय यूनियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग ओवरऑल डेवलपमेंट इन IHR, दैट इज इंडियन हिमालयन रीजन, ठीक है ना। मिशंस कौन कौन से हैं, मिशंस देमार, ठीक है, ये नाम बता रहे हैं कि कौन कौन से। सम ऑफ द मिशंस आर as follows. Number 1 is National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem, that is 2010 का ये Indian Climate Adaptation Program, Secure Himalaya Project, ठीक है ना। Recent guidelines by recent guidelines carrying capacity in IHR. Reminder was also circulated. Reminder to states that if study not conducted should be conducted, ठीक है ना। अब इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है, तुमने लिख तो सारे ही लिए होंगे, बट हाँ तुम्हें डर भी लग रहा होगा कि याद करने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे ये जो रीसेंट गाइडलाइंस वाला है ना, कैरिंग कैपेसिटी इन IHR, ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 30 जान 2020 का है, ये लिख भी लो, 30 जान 2020 का है ये, ठीक है। बाकी सारों की अगर रीडिंग मारते रहोगे ना, और ये पता होना चाहिए कि यार कैरिंग कैपेसिटी होता क्या है। मैंने तुम्हें बता दिया कि भैया कितनी हैसियत है इन्वायरमेंटली कि वो जगह इतने सारी कंस्ट्रक्शन, इतने सारे लोग संभाल सकती है नहीं, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हैं इकोलॉजी में, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उस हिसाब से वो बताते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। द एसेंट बिगिंस इसरो,
अब इसरो का जो गगनयान का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, गगनयान क्या है, अगर गगनयान का ऑप्शन बनेगा तो वहां पर क्या हमें लिखा सकता है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। ठीक है, अब इसमें क्या किया, अनक्रूड डेवलपमेंट। ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं। At 10 a.m. on October 21, the Indian Space Research Organization commenced the first uncrewed development flight of Gaganyaan human space flight mission from Sriharikota, designated TVD-1। ठीक है, TVD-1 को लॉन्च किया गया। ये क्या था, टेस्ट कर रहे थे। क्या टेस्ट किया था इसमें, क्रू एस्केप सिस्टम। व्हाट वाज टेस्टेड, क्रू एस्केप सिस्टम वाज tested. What was tested? Crew escape system was tested. The launch vehicle, a single stage rocket, carried a crew module fit with a crew escape system to at altitude of 12 kilometers. तो यहाँ पे यार मैं बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, गगनयान। तो गगनयान का हमारा पहला पॉइंट क्या बनेगा, ये क्या है, इसरो का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। क्या है, ह्यूमन, क्या है ये, इसरो का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। ठीक है, इसमें क्या किया था, दिस वाज द फर्स्ट uncrewed development of Gaganyaan which was tested, और इसको क्या नाम दिया गया, TVD-1। ठीक है, अब TVD-1 में क्या टेस्ट किया गया, ठीक है, क्रू एस्केप सिस्टम। कि मान लो अबॉर्ट करना पड़ जाता है मिशन, तो क्रू को तो निकालेंगे ना, तो कैसे निकालेंगे, वो सिस्टम जो है वो टेस्ट किया गया। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन, अगर TVD क्या था कि अनक्रूड डेवलपमेंट जो गगनयान की है वो टेस्ट करी गई थी, और क्रू एस्केप सिस्टम डेवलप किया गया था, टेस्ट किया गया था, और जिसके अंदर क्रू नहीं था। ठीक है, बट रोबोट्स बिठाए होंगे और ये सब कुछ करा होगा कि अगर हमें मिशन अबॉर्ट करना पड़ जाता है, कि हमें ये हो जाता है कि स्पेस में नहीं जा सकते, कुछ हो गया, मशीन में कुछ गड़बड़ी हो गई है, अबॉर्ट करना पड़ता है, तो क्रू का जो एस्केपिंग का सिस्टम रहेगा वो कैसा होगा, वो टेस्ट किया। Last week, Prime Minister Narendra Modi called on ISRO to launch humans to the moon by 2040. Even with the requisite financial support, this would be a very tight deadline. But as with ठीक है, तो यहाँ पे 2040 तक क्या बोल रहे हैं, लॉन्च ह्यूमंस टू द मून। ये हम ऑलरेडी लॉन्च, सॉरी 2040 तक क्या कह रहे हैं, लॉन्च ह्यूमंस टू द मून। ठीक है, ये एम सेट कर दिया है किसने, PM मोदी ने। किसके लिए, इसरो के लिए। ये अगर पिछली बार आपने नोट नहीं किया था तो कर लीजिए। Having earnings grown have earnings grown post pandemic। ठीक है, recent data from periodic labor force survey of 22-23 revealed a strengthening of a labor market with unemployment rate falling and labor force participation rates rising. Rural women's LFPRs for those aged 15 and above rose from 19.7% to 41.5% in 2022-23, a significant jump। ठीक है, उसके बाद there has been a rise in proportion of women working as unpaid family helpers, with the share of rural working women in the form of employment rising. The share of women regular wage fell from, ठीक है, रेगुलर वेज जो है वो कितना गिर गया ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं PLFS क्या है, सबसे पहले तो इट इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है, इसमें क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉलिंग, एक मिनट यार, सॉरी, रूरल वुमेन्स लेबर force participation rates for those aged 15 and above rose from 19.7% in 2018-19
to 41.5% in 22-23। ना जो वुमेन लेबर फोर्स है वो कितनी बड़ी है, ये परसेंटेजेस हमारे लिए थोड़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। Why Wall Street firms using messaging apps are coming under regulatory probe? जो वॉल स्ट्रीट है मतलब वहाँ की जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज commission stocks is the US Securities and Exchange Commission is investigating Wall Street investment company employs chat messages to confirm how widely they used personal apps such as Meta's WhatsApp, privacy focused Signal or Apple's iMessage to discuss business. The regulator collected thousands of such messages from employees working at more than 10 investment companies according to Reuters report. तो यहाँ पर अलाउड नहीं है, ऐसे पर्सनल मैसेजेस नहीं यूज कर सकते। वाई सेक कलेक्टिंग वॉल स्ट्रीट फर्म्स व्हाट्सएप मैसेजेस? Like many regulators, the SEC expects US-based finance companies to keep and preserve their employees' electric communication. तो जो electric communication employees किसी और के साथ करते हैं उसको preserve करना होता है, ये US का रूल है। फाइनेंस कंपनीज को चार्ट्स प्रिजर्व करके रखने होते हैं उनके एम्प्लॉयज़ के बीच में और कस्टमर्स के बीच में जो हो रही है। प्रिजर्व देयर एम्प्लॉयज़ इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन। Legacy communication platforms providers like Microsoft and Google offer enterprise products tailored to meet these very needs। तो Google और Microsoft के products हैं जो ये वाली need को fulfill कर देते हैं कि जो employees की electronic communication है वो ये preserve कर देते हैं Microsoft Google वाले, जो भी इनका कोई platform इन्होंने बनाया हुआ है। But when employees from different parts of companies hierarchy use personal और off channel methods of communication with each other or discuss work, वो कहते हैं अगर एक दूसरे से बात करने के लिए भी अगर वो व्हाट्सएप का यूज करते हैं या किसी और कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, द इंटेग्रिटी ऑफ कंपनीज कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स इज इम्पैक्टेड अकॉर्डिंग टू SEC। तो वो कह रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स हैं कंपनी के, जो SEC के अकॉर्डिंग मेंटेन करने होते हैं, दैट इज US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमिटी के अकॉर्डिंग, वो इफेक्ट हो जाते हैं। During the pandemic years, as employees worldwide adapted to work from home or hybrid work patterns, online work आ गया था, a number of them began using personal messaging apps and service for work-related reasons. While this may seem innocuous, employees in large investment companies such as Wall Street firms could end up losing or deleting vital business information that the SEC and other legal authorities might demand as evidence. अब यहाँ पर ये क्यों कहते हैं कि एक जो मैसेजिंग है वो सेव करके रखना है, वो आपको प्रिजर्व करके रखना है। क्यों प्रिजर्व करके रखना है? कि कल को अगर कोई लीगल इशू हो जाए तो जा सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे व्हाट्सएप है वो तो इनक्रिप्टेड है, वहां से इंफॉर्मेशन निकालनी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है। तो वो एविडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हिल गया ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि लोगों ने अपने पर्सनल मैसेजिंग ऐप यूज़ करे, मतलब व्हाट्सएप से बात करी, सिग्नल से बात करी। To date, the Commission has brought 30 enforcement actions and orders over $1.5 billion in penalties to drive this foundational message home. ठीक है। तो अब इन्होंने पेनल्टीज लगाई हैं कि जो भी ये कर रहा है ये सही नहीं है। इन द लेटेस्ट केस रिपोर्टेड बाय Reuters, some of the targeted companies include Carlyle, Apollo, KKR, TVG and Blackstone. In a sign that SEC is hardening its stance, the regulators may review the thousands of collected employees' messages rather than hitting the company with a fine and entrusting them to manage their employees' workplace communication hygiene through internal reviews or an independent consultant. The SEC has not commented on these actions yet. How the SEC fined companies over this issue before? Since around 2021, SEC has taken action against companies over their employees using personal messaging apps to discuss work or them exchanging work messages through apps or personal devices. ठीक है। रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायरमेंट US लॉ के अकॉर्डिंग को रखना पड़ता है, फॉर अगर कहीं कुछ लीगल इश्यूज के लिए चाहिए हो तो जो इनक्रिप्टेड वर्क रिलेटेड मैसेजेस हैं, मतलब व्हाट्सएप पे जो बात हो रही है वो नहीं निकलवा सकते हो, बट जो प्रिजर्व्ड है उसमें से निकाल सकते हो। अब इसको मैं आपको शॉर्ट में लिखवाती हूँ, टेंशन मत लो, जो लिखवाऊंगी उससे हो जाएगा। US Securities and Exchange Commission, that is SEC, it is compulsory to use platforms. It is compulsory for finance companies. It is compulsory for finance companies to use platforms that preserve
their employs electronic communication. They are not allowed to do work related communication through other apps like WhatsApp, Signal, etc. अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है वाई, ऐसा क्यों, वाई? ठीक है, लीगल, फॉर एविडेंस रिलेटेड, फॉर लीगल एविडेंस रिलेटेड इश्यूज, ठीक है ना। अगर उनको चाहिए हो चैट तो वो वहां पर जाकर जो ये प्लेटफॉर्म है वहां से निकलवा कर सकते हैं, बट व्हाट्सएप में चैट निकलवा नहीं सकते, तो अलाउड ही नहीं है उस पर वर्क रिलेटेड बात करना। ये यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन कहता है, जिसको सेक भी कहते हैं। बस यही हमको पढ़ना था, ठीक है। अब इसमें चलेंगे, द टू कर्ब टैक्स इन इवेजन ईयू कॉल्स फॉर 2% ग्लोबल टैक्स, ठीक है ना, ऑन वेल्थ, ठीक है ना, वेल्थ ऑफ बिलियनर्स, जो बहुत ज़्यादा अमीर है उसके ऊपर 2% टैक्स लगाएंगे। Pointing out that tax invasion is enabling billionaires to enjoy effective tax rates equivalent to 0% to 0.5% of their wealth, the European Union Tax Observatory, in its Global Tax Evasion Report 2024, has called for a global minimum tax on billionaires equal to 2% of their wealth. ठीक है, तो इसके अंदर ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे सबसे पहले क्या है, ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 सॉरी, ठीक है। तो ये कौन लेकर आया था, ये यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी, क्या बोला इन्होंने, कॉल्ड फॉर वो कह रहे हैं कि जो बिलियनर्स हैं वो इतना कम टैक्स पे कर रहे हैं अभी, इनको ज़्यादा टैक्स पे करवाओ, ठीक है ना, इक्वल टू 2% ऑफ देयर वेल्थ। जो बिलियनर्स हैं वो 2% ऑफ देयर वेल्थ जो है उनको टैक्स पे करना चाहिए। कौन कह रहा है, यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी की रिपोर्ट का क्या नाम है, ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024। बस हमको ये दो ही पॉइंट्स याद करने हैं। उसके बाद ताइवान फॉक्सकॉन अंडर टैक्स एंड लैंड यूज इन चाइना। तो फॉक्सकॉन जो है वो क्या करती है, नोन फॉर चिप्स, दैट इज सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। ताइवानीज टेक जाइंट फॉक्सकॉन इज अंडर टैक्स एंड लैंड इन use in investigations at several of its sites in China, state media reported on Sunday. Chinese authorities are expecting Foxconn site in southern Guangdong province and Jiangsu in the east, as well as carrying out on-site investigation to the company's land use in central Hunan and Hubei provinces. ठीक है, तो अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि Foxconn का जो फाउंडर है बिलियनर टेरी गऊ has cut ties with the firm to focus on his long shot bid to run as independent candidate on Taiwan's जनवरी। तो अब यहाँ पर यार ये इन्वेस्टिगेशन, मतलब फॉक्सकॉन के पीछे क्यों पड़े हैं, फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी है, ठीक है, और चाइना और ताइवान का तुम्हें पता ही है कि इनके आपस में नहीं बनती, इनकी तो पुरानी दुश्मनी है, ठीक है ना। चाइना कहता है ताइवान मेरा, ताइवान कहता है मेरा तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस ये करते रहते हैं, तो अगर ज़्यादा न्यूज़ में आएगा तब नोट करेंगे, अभी नहीं करेंगे। नवाज शरीफ कौन है, हु इज़ नवाज शरीफ इन द चैट सेक्शन, बताइए। ही इज़ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर PM ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। और अभी हम इनके बारे में क्यों बार बार पढ़ रहे हैं, करप्शन करके कहाँ चले गए थे, लंदन चले गए थे, ठीक है। कन्विक्शन भी हुई, जेल की सज़ा भी मिली, कन्विक्शन हुई इनकी
ठीक है ना, कन्विक्शन हुई। और अब क्या हुआ, पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, वहां के कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी सी करप्शन करी तो क्या है, अभी तो और करेंगे, ठीक है ना। तो अब इनको वापस बुला लिया कि हाँ हम तुमको अरेस्ट भी नहीं करेंगे, आ जाओ आ जाओ, ठीक है ना। एंड अब ये इलेक्शंस लड़ेंगे, ठीक है। नवाज शरीफ मूव्स टू रिस्टोर अपील्स अगेंस्ट कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है प्रूवन गिल्टी, ही हैज बीन प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट, करप्शन चार्जेस हैं इनके अगेंस्ट। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साइंड एप्लीकेशन ऑन हिज रिटर्न टू पाकिस्तान टू रिस्टोर पेंडिंग अपील्स अगेंस्ट हिज कन्विक्शन इन एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, ठीक है ठीक है। शरीफ 73, द 3-time प्राइम मिनिस्टर एंड सुप्रीमो ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN returned to Pakistan on Saturday after spending 4 years in self-imposed exile in London. Sharif signed the applications at Islamabad International Airport on Saturday. The applications are prepared by legal team will be filed in Assam. तो ये अब अपील फाइल करेंगे, अपील मतलब डिसीजन को चैलेंज करेंगे, जिसके अंदर कहा गया कि yes he has committed corruption, उस डिसीजन को चैलेंज किया जाएगा, ठीक है। तो पढ़ी लेते हैं। द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वॉज कन्विक्टेड इन एवनफील्ड एंड अल अजीजिया केसेस एंड वॉज डिक्लेयर्ड अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इन द तोशखाना व्हीकल केस विच इज pending before an Islamabad accountability court. He was on the bail on these cases when he left for the UK in 2019 on medical grounds. Meanwhile, jailed former Prime Minister Imran Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf Party has strongly criticized the VVIP protocol given to Sharif upon his return to Pakistan, alleging that all federal and Punjab government resources were used to manage the return of the convicted absconder. तो यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए, वी शुड नो द नेम ऑफ दिस पर्सन, नवाज शरीफ, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मोटा पेन हो गया, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। नवाज शरीफ, ठीक है। जो नवाज शरीफ है, ही वॉज द फॉर्मर PM ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। जो फैक्ट्स हैं वो नोट कर लेते हैं। बिलोंग्स टू मुस्लिम लीग, सॉरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ठीक है ना, PMLN, ठीक है। 3 टाइम PM रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। कन्विक्टेड इन करप्शन केसेस, नाउ बैक इन पाकिस्तान टू फाइट इलेक्शंस, ठीक है जी, ओके। चलिए आगे चलेंगे अब। Plagues with name of Modi, Vice-Chancellor at Visva-Bharati trigger now row. A controversy has erupted over the installation of plagues. वो जो पत्थर पे नहीं लिखा होता वो नाम, ठीक है, उसके रिलेटेड कंट्रोवर्सी है। कहाँ पर, यूनेस्को यूनिवर्सिटी इन वेस्ट बंगाल टू मार्क द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूनेस्को specifically said they are honoring Rabindranath Tagore and his unique legacy by declaring शांति निकेतन एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि शांति निकेतन, ठीक है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड है, शांति निकेतन वाज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, ठीक है। क्या डिक्लेयर करी थी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। तो उसके अंदर अब नाम नहीं लिखा, ये पॉलिटिकल वो सारा एजेंडा हो गया, तो करते रहते हैं। शांति निकेतन, अ टाउन सेटअप बाय नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर वर नेम्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है ना। अ टाउन सेटअप बाय रविंद्रनाथ Tagore. UNESCO credited renowned poet and philosopher Rabindranath Tagore for establishment of Shanti Niketan, which is distinct from prevailing British colonial architecture orientations, ठीक है ना। तो ये सारा
मतलब हमें सिर्फ शांति निकेतन क्या है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया गया, ये पता होना चाहिए। आर्मी टू स्टार्ट फेसिंग आउट चीता एंड चेतक हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम 2027। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये लिख लेंगे, आर्मी टू स्टार्ट फेजिंग आउट चीता एंड चेतक helicopters from 2027. The Army will start phasing out the first lot of vintage Cheetah and Chetak helicopters from 2027 on completion of their technical life as it looks to induct the indigenous light utility helicopters. ठीक है ना, will induct, क्या लिखेंगे, will induct indigenous light utility helicopters, that is LUH. ठीक है ना। अब लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर कौन बना रहा है, ये नीचे दिया हुआ है, तो चलते हैं। टू रिप्लेस देम अकॉर्डिंग टू डिफेंस सोर्सेज, द आर्म्ड फोर्सेज हैव बीन अटेम्प्टिंग टू रिप्लेस चीता एंड चेतक हेलीकॉप्टर्स फॉर वेल ओवर अ डेकेड। इन नवंबर 2001 द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव्ड द प्रोक्योरमेंट ऑफ 11 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वेरिएंट्स ऑफ LUH at a cost of around 1500 crore, 6 each for the army and the air force. Choppers have been designed and developed by, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेकेंड पॉइंट बनाएंगे, in 2021 12 limited series variants of LUH approved, ठीक है, designed by choppers designed by designed and developed, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दैट इज HAL, इसको कर रहा है, बना रहा है, डिजाइन और डेवलप कर रहा है, किसको, LUH। ठीक है, LUH की फुल फॉर्म क्या है, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स। कौन से वाले फेज आउट हो रहे हैं, चीता और चेतक। कब तक, 2027 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स, NDA CDS वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Two experiments conducted by ISRO paved way for Gaganyaan test mission। ठीक है, पढ़ लेते हैं फटाफट से। देयर वर टू इम्पॉर्टेंट फोर रनर, मतलब जो पहले किया गया सक्सेसफुल टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन। TVD1 की हमने कल फुल फॉर्म लिख ली थी। ठीक है, फ्लाइट दैट द इंडियन ISRO कंडक्टेड। ठीक है, इस मिशन से पहले क्या किया गया, ड्यूरिंग द टेस्ट एन अनमैन्ड क्रू मॉड्यूल वॉज ब्रॉट बैक सेफली टू अर्थ आफ्टर लॉन्चिंग इट ऑन अ स्मॉल रॉकेट एंड स्टिमुलेटिंग एन इमरजेंसी अबॉर्ट कमांड। ठीक है, तो यहाँ पर ये इमेजिन किया गया कि मान लो क्रूज के अंदर बैठा है, उसको लॉन्च किया जाता है, बट मिशन जो है वो सक्सेसफुल, किसी कारण से मिशन को अबॉर्ट करना पड़ता है। तो अगर ऐसा होता है तो कैसे मिशन जो ह्यूमंस हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, उसमें क्रू मेंबर्स जो हैं उनको कैसे रेस्क्यू किया जाएगा। द टेस्ट एंड इट्स फोररनर्स आर द इसरोज फर्स्ट मेजर स्टेप्स टुवर्ड्स लॉन्चिंग ह्यूमंस टू ऑर्बिट एज पार्ट ऑफ गगनयान मिशन। The TVD1 test was carried out smoothly, especially given that the ISRO had to overcome a glitch 5 seconds before liftoff at 8:45 a.m. when the ground computer called automatic launch sequence halted the liftoff. ISRO chairman S. Somnath said it issued a hold when it detected a non-conformity for allowing the engine to continue thrusting to further go. This happened due to a monitoring anomaly. He added, we could identify very fast and correct it. It took us some time to refill the gases, after which the launch was rescheduled for 10 a.m. तो launch reschedule हुआ था, किस लिए ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है। The first forerunner of TVD1 mission was the ISRO Space Capsule Recovery Experiment, SRE1। तो वो कहते हैं कि इससे पहले कि TVD1 हो सकता है, जो इन्होंने किया मिशन अभी किया, ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने क्रू एस्केप सिस्टम्स जो थे, मॉड्यूल जो था क्रू एस्केप मॉड्यूल, उसको टेस्ट किया। उससे पहले भी बहुत कुछ गया। ठीक है, उसके अंदर इन्होंने पहले क्या किया था ये हम नोट करेंगे। ठीक है, इन्होंने SRE1, ये क्या है, SRE1 क्या है, ठीक है ना। SRE1 ये जो है ये है इसरोज स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना,
forerunner to TVD1 मिशन। ठीक है, अब यहाँ पर एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट द SRE वाज ब्रॉट बैक टू अर्थ ऑन जनवरी 22 जनवरी 2007 आफ्टर PSLV प्लेस्ड इट इन ऑर्बिट। ठीक है, इसके अंदर क्या किया गया था, लिखेंगे द SRE was brought back to earth, एक मिनट, सॉरी, एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, अर्थ के आसपास जो घूम रही थी, एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट called SRE was brought back to earth on 22nd January 2007 after PSLV placed it in orbit on 10th Jan। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या किया गया था, जैसे ये वाली जो गगनयान है वो पहले स्पेस में जाएगा और वापस आएगा, वैसे ही ऑर्बिटिंग सैटेलाइट जो थी SRE वो पहले स्पेस में भेजी गई 10 जैन को और फिर वापस लेकर आए 22nd Jan को। In a series of maneuvers, the shuttlecock-shaped SRE came down from an altitude of 635 km to splash down into Bay of Bengal, 140 km from Sriharikota, where the Coast Guard recovered it. India thus successfully brought back an orbiting satellite in its first attempt. ठीक है, orbiting satellite को हम वापस ले आए। The SRE-1 was India's first step towards sending an Indian astronaut into space and bringing them back safely. Former ISRO chairman G. Mano had said, "This is a humble step towards sending an Indian into space." BR गुरु प्रसाद, तो ये SRE-1 को भेजा गया था, तो वो कहते हैं कि इस TVD-1 जो है इसके अंदर तो क्रू मॉड्यूल सिस्टम टेस्ट किया गया, इसमें सबको क्लैरिटी है या नहीं, क्रू एस्केप मॉड्यूल टेस्ट किया गया, इसमें सबको क्लैरिटी है या नहीं, गगनयान में सबको क्लैरिटी है या नहीं, अगर नहीं है तो आफ्टर क्लास हम दोबारा से इस चीज को समझ सकते हैं, बट क्लैरिटी होनी चाहिए। गगनयान के अंदर क्लैरिटी है या नहीं है, यस 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 लिख दो अगर क्लैरिटी है। अरे ये हो ही गया। सो गाइस, आप www.loggery.in पर जा सकते हैं एंड वहाँ पर आपको मिल जाएंगे मंथली लेक्चर्स। ये जो मंथली लेक्चर्स हैं करंट अफेयर्स के, इन केस आपका कुछ मिस हो गया, आपसे नोट्स नहीं बन पा रहे हैं, कुछ दिन आपके मिस हुए हैं, कुछ दिन आपने मेरे को सुना है, ठीक है, तो आप इन लेक्चर्स से अपने पूरे मंथ की न्यूज़ जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं ये मई, जून, जुलाई, अगस्त के अवेलेबल हैं, सितंबर और अक्टूबर के भी मैं डाल दूंगी। ठीक है, एंड इसके अंदर तो बेस्ट पार्ट है इसमें PDF भी अवेलेबल है और प्लस क्लासेस तो है ही है, मतलब वो PDF को पूरा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ और लर्न करवाने की भी पूरी कोशिश कर रही हूँ। इसमें आप एजुगिरी 50 का कोड यूज कर सकते हैं एंड आपको ये पर मंथ का ₹250 का पड़ेगा, ₹250 पर मंथ का ये आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मॉक टेस्ट हैं, हमने मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं, जो वो किए हैं वो CUET PG के मॉक टेस्ट लॉन्च करे हैं एंड अभी हमने करे हैं MHCET 3 years के। ठीक है, एंड MHCET 3 years पे अभी ₹500 ऑफ चल रहा है, प्रैक्टिस 500 का अगर आप कोड लगाएंगे तो आपको ₹500 का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट रिलीज कर दिए गए हैं, करंट अफेयर्स लेक्चर्स हैं और डेली जो नोट्स हैं वो भी आप खरीद सकते हैं फॉर ₹100। ये डेली नोट्स जो हैं ये ₹100 के हिसाब से अवेलेबल हैं पर मंथ। ठीक है, बहुत ही क्लियर नोट्स अब दिखते हैं, गूगल ड्राइव पे हम आपको ऐड कर देंगे अगर आप पेमेंट करेंगे, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। ठीक है जी, अब हम आते हैं कल की न्यूज़ पे। ठीक है, अब कल वाली न्यूज़ जो है हमारी इजराइल वाली तो करेंगे, बट हमारे कुछ और भी चीज़ें थी जो हमारी मिस हो गई थी, पहले ये पढ़ेंगे। मोहम्मद यूनिस एंड हिज ग्रास रूट्स ग्रामीण बैंक वन द नोबेल प्राइज इन 2006। तो मोहम्मद यूनिस वाला जो टॉपिक है हमने वो बहुत बार पढ़ा है। मोहम्मद यूनिस जो है ही बिलोंग्स टू बांग्लादेश, ठीक है ना, और इनको नोबेल प्राइज मिला था, क्यों? क्योंकि माइक्रो क्रेडिट सिस्टम करके इन्होंने कुछ स्टार्ट किया था विच वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक है ना, अब इनको नोबेल पीस प्राइज कब मिला था? 2006 में। ये भी हमने बहुत बार लिखा हुआ है, अगर आपने कभी नहीं लिखा है तो प्लीज इसको लिख दीजिए। नोबेल पीस प्राइज मिला 2006 के अंदर। ठीक है,
अब इसमें क्या हुआ? Now lending a social conscience to capitalism and their efforts to create economic and social development below in Bangladesh at 83 the banker to the poor does not appear to be slowing down. तो अब यहाँ पर क्या हुआ? ये न्यूज़ के अंदर क्यों बने हुआ है? क्योंकि बांग्लादेश के अंदर इनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा एक्शंस लिए जा रहे हैं कि लेबर लॉज को फॉलो नहीं कर रहे हैं और ये सब. बट यहाँ पे कुछ जो पार्टीज हैं वो ये भी कह रही हैं कि बिकॉज जो वहाँ की पीएम है शेख हसीना, उनके साथ इनकी बननी बंद हो गई है, तो इसलिए ये सब कर रहे हैं. अब ये क्या कह रहे हैं? ही स्ट्राइव्स, ही asserts for a world of 3 zeros: zero poverty, zero unemployment, zero net carbon emissions. Instead of shunning capitalism, Mr. Yunus' approach has been to humanize it. The capitalist system is machine which sucks up wealth from the bottom to send it to the top. It is not fault of individuals at top. They follow what the system asks them to do. Chase money. Mr. Yunus said in an interview with the New York Times in 2017, but the process wealth at the top grows like a giant mushroom owned by fewer and fewer people for the simple reason that more they have, the more they get. Wealth is a magnet. Mr. Yunus modified the system by allowing humans to express selflessness through what is known as social business. The concept, although deemed unrealistic by many, caught the Western imagination. It evolved from his practice of granting poor people some loans on easy terms, the cornerstone of the Grameen Bank since its establishment in 1983. So he started giving loan to poor people through a bank called Grameen Bank in 1983. तो यहाँ पर अगर नोट करना है तो कर सकते हो, बट वी हैव मेड अ लॉट ऑफ नोट्स विद रिगार्ड टू दिस गाय. तो मोहम्मद यूनुस, ठीक है, मोहम्मद यूनुस का सबसे पहला पॉइंट बनेगा was awarded Nobel Peace Prize in 2006 to started practice of granting poor people small loans on easy terms. ठीक है, क्या बोला? ग्रामीण बैंक established in 1983. उसके बाद after completing his studies in Bangladesh, Chittagong, he decided to give loans to people who wanted to start their own small enterprises. The initiative was expanded through Grameen Bank on large scale. Under the Grameen Bank played a vital role. More than 100 nationals have sought to replicate the model. Micro lending, ठीक है ना, micro lending, छोटा लोन देना, ज़्यादा पैसे नहीं, छोटा देना. However, his banking for poor venture has come under attack from some quarters. ठीक है, micro credit said to carry unusual high interest rate due to. तो यहाँ पर बांग्लादेश वाली जो गवर्नमेंट है वो इसके अगेंस्ट हो गया है, इंसान के अगेंस्ट. तो हमें पता होना चाहिए कि भाई इसको नोबेल प्राइज कब मिला था, क्यों मिला था? माइक्रो क्रेडिट स्कीम की वजह से, कि छोटा क्रेडिट, ठीक है, माइक्रो क्रेडिट स्कीम की वजह से दिया गया था. ये 3 पॉइंट्स हमको याद रखने, इसका नाम और वाई वाज ही न्यूज, बिकॉज differences have grown between Bangladesh government, current Bangladesh government and this government and him. ठीक है ना, तभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में क्या वो कह रहे हैं कि ये लॉज नहीं फॉलो करें, और ये तो रेपिटेशन थी. ठीक है, उसके बाद टेंशन बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एज टेंशन बिटवीन मॉस्को एंड वाशिंगटन माउंट्स, रशिया ऑन वेडनेसडे पास्ड द सेकंड एंड थर्ड रीडिंग ऑफ द बिल टू रिवोक इट्स रेटिफिकेशन ऑफ द कॉम्प्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी. तो कॉम्प्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी की आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करोगे, तो रशिया जो है इसका रेटिफिकेशन रिवोक कर रहा है कि हम नहीं मानते, इसको रिजेक्ट कर रहा है. ठीक है ना, तो वापस ले रहा है. तो ये वाली जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा टेंशन है कि इसका मतलब ये क्या मतलब न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, तो कैंसिल करने वाले हैं ये लोग. ठीक है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज़ ऑन October 5 urged the Duma, the lower house of the country's parliament, to make the change to mirror the position of US. The CTBT seeks, अब यहाँ पे कहता है CTBT seeks to ban all nuclear explosions for both military and peaceful purposes. So far as 187 countries have signed the treaty and 178 have ratified it. The treaty, however, has not legally come into force. It can only do so when it has been signed and ratified by the 44 countries which are part of the treaties annexed to and had formally participated in 1996 session of the Conference on Disarmament. These countries possessed nuclear power or research reactors at the time.
Of these, North Korea, India, and Pakistan have not signed CTBT. Why 5 of 44 countries, China, Egypt, Iran, Israel, and the US have signed but are yet to ratify the treaty. 9 countries have nuclear weapons, while the remaining 35 possess nuclear power and research reactors. तो यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल रही है और ये हमारे एग्जाम में भी आ सकता है. तो हम अपनी हेडिंग डालेंगे रशिया to revoke, that is cancel. Russia to revoke, that is cancel. Russia to revoke, that is cancel. Its ratification to the of the comprehensive nuclear test ban treaty, that is CTBT. ठीक है, अब ये रशिया प्लान कर रहा है. अब इसके अंदर क्या है, CTBT क्या करती है, CTBT seeks to ban all nuclear explosions for both military and peaceful purposes. So far 187 countries have signed the treaty. ठीक है, ये लिखेंगे so far 187 countries have signed the treaty and 178 have ratified it. मतलब अप्रूव करा है कि हाँ हम अप्लाई करेंगे. But not came into force, has not came into force can only do so when it has been signed and ratified by 44 countries which are part of treaty. Annexure 2 मतलब कोई treaty का एक part है, एक document है, उसके अंदर जिनका नाम है, who had formally participated and had formally participated in, ये तो reading ही मानना point ये वाला, तो ठीक है ना. इन यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है कि ये सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, 1996 में लिख सकते हो. ये कम ही एक्सपेक्टेड है ये वाला पॉइंट. बट जो मेन क्वेश्चन जहाँ से है, ठीक है. अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है फोर्थ जो बनता है, ये बनता है यहाँ पे, क्योंकि इंडिया भी आ रहा है नाम. नॉर्थ कोरिया, इंडिया एंड पाकिस्तान have not signed CTBT. 5 of 44 countries, China, Egypt, Iran, Israel, and US have signed but not ratified. ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है फोर्थ और फिफ्थ, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इन पॉइंट्स पे हम लिख लेंगे इम्पॉर्टेंट. उसके बाद यहाँ पर क्या है, द यूएस कंडक्टेड द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑन जुलाई 16, 1945 एट अल्मोगोर्डो इन न्यू मैक्सिको. बेरली अ मंथ लेटर इट ड्रॉप 2 एटॉमिक बॉम्ब्स. ठीक है, इन्होंने टेस्ट किया और फिर उसके अगले महीने इट ड्रॉप 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी इन जापान. This is again important. The devastation caused by the bombings drew attention to the nuclear armament race. The Limited Test Ban Treaty of 1963, also called the Partial Test Ban Treaty, was the first international step in the direction of prohibiting nuclear testing in the
atmosphere, underwater and in outer space. Now this is again very very important. I'm creating boxes around it because ये हमको note करना है. ठीक है. The treaty was signed by the US, the erstwhile Soviet Union, that is Russia और उसके सारे बहन भाई, and the UK. It however did not extend to underground testing. ठीक है ना. Underground testing was still allowed under this treaty. Subsequently, the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) of 1968 followed as concerns about nuclear stockpiling continued, fueled by Cold War between US. अब क्या हुआ? Cold War चल रही थी US और रशिया के बीच में. It was stockpiling that everyone, these countries and their all the teammates were trying to collect more and more nuclear. Thought that if the war happens someday, it is the nuclear that is going to decide the fate of the grouping. As the Cold War ended, the impetus for CTBT was bolstered by the global anti-nuclear movement and the newfound international climate of cooperation. Negotiations began in 1994 and concluded in 1996 with the adoption of the treaty text by the United Nations General Assembly. The CTBT also establishes a comprehensive verification regime to monitor and detect nuclear test explosions. This regime consists of three main components: the International Monitoring System, which has more than 300 global facilities and can detect seismic shock waves through the ground. Now, what is CTBT? CTBT also has systems to test, to see, to detect if someone is conducting nuclear tests. That is how they found out when India became nuclear that yes, we have tested nuclear, because there are systems that we can do. मतलब उनको पता भी चल जाता है और हमने भी डिक्लेयर किया था, उनको भी पता चल ही जाता है. तो यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम है which has more than 300 global facilities and can detect shock waves by hydroacoustic sound waves, infrasound waves inaudible to the human ear, and radionuclide, radioactive particles and gases from the nuclear explosion in the atmosphere signals. The International Data Center, which receives data from the IMS network and shares it with member states, and on-site inspections which will be possible once the treaty is enforced. Although the CTBT is struck in an ongoing ratification impasse, it has had positive implications for global nuclear non-proliferation. Non-proliferation कि इसको हम फैलने ना दे, हर country nuclear बन के नहीं बैठ जाए. Ever since the treaty was opened for signatures in 1996, 10 nuclear tests have been conducted, 2 each by India and Pakistan, 6 by Korea. This is drastically less than the more than 200 nuclear tests conducted globally between 1945 and 1996. So there were 2,000 nuclear tests that were conducted, 2,000 nuclear tests that were conducted between 1945 and 1996. After 1996, 2 each by India and Pakistan and 6 by North Korea. So the number is pretty less. Now, Russia's latest actions can embolden other countries to revoke their ratification, renewing the nuclear arms race. The timing of the move is crucial, as well as Russia's conventional efforts in the nuclear Ukraine war appear to be stagnating. Western powers like US and European Union have interpreted Mr. Putin's threat of escalation in Ukraine to be nuclear. While Ukraine views the Russian move as stepping up its nuclear blackmail, Moscow has maintained that a change in status quo does not define an intent to carry out a nuclear test, and that it won't do so unless US does it first. तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि हम पहले नहीं चलाएंगे, बट अगर US न्यूक्लियर यूज करता है तो हम उसको बख्शेंगे भी नहीं. Now I hope you get a gist of what they are trying to say. तो यहाँ से हम ट्राई करेंगे, यहाँ से हमें और क्वेश्चंस मिलते हुए. ठीक है, we are going to note down the 6th point. ठीक है, 6th point is US conducted the first nuclear test on 16th July 1945 at Alamogordo in New Mexico. Now here we see a question that is USA ने 1945 के अंदर फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था और उसके थोड़े ही दिन बाद उसने ये यूज भी कर दिया था. ठीक है ना. a month later dropped 2 atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki in Japan. Why Hiroshima is very very important. इस बार G7 की जो आपकी मीटिंग है
वो G7 की जो समिट है जो जापान ने होस्ट करी थी वो कहाँ पर हुई थी? हिरोशिमा में हुई थी। ठीक है ना। अब तो जापान और यूएस बहुत पक्के वाले दोस्त हैं। ठीक है, अब ये बता रहे हैं ये क्लैट, ओनली क्लैट वाले ये बॉक्सेस नोट कर ले। ओनली क्लैट, दिस इज ऑल्सो ओनली क्लैट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ क्लैट। ठीक है, तो ओनली क्लैट वाले नोट कर लें इसको। ठीक है, टू नोट ऑल ऑफ दीज बॉक्सेस। ठीक है, उसके बाद आता है ये वाला इजराइल एंड पैलेस्टीन। आई एम डूइंग अ वेरी गुड रिसर्च विद रिगार्ड टू इजराइल एंड पैलेस्टीन। अगेन आई एम रीडिंग सम थिंग्स। ठीक है, अब हम लेट हो ही गए तो अच्छे से ही फिर करें। तो ये कल परसों के अंदर वी विल स्टडी द इजराइल वाला पार्ट अगेन। तो यहाँ पर इतने जो बच्चे हैं जो क्लैट वाले नहीं हैं वो क्लास लीव कर सकते हैं, बिकॉज अब जो क्लैट वाले हैं उनके लिए भी हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली क्लैट लिखकर आई एम गोइंग टू मेक नोट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? लिमिटेड, कौन सा टेस्ट हुआ? लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, कब आई ये? 1963 में, ऑल्सो नोन एज पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। ये क्या किया इसने? प्रोहिबिटेड इंटरनेशनल step in that direction. Basically it prohibited nuclear testing underwater, in outer space, in atmosphere. ठीक है, did not extend to underground testing। ठीक है, उसके बाद 9 CTBT के बारे में। CTBT opened for signatures in 1996। उससे पहले prior to that 2000 nuclear, prior to that ये लिखेंगे, prior to that उससे पहले 2000 nuclear tests were conducted। 2000 nuclear tests were conducted between 1945 to 1996। ठीक है, and after 1996 only India conducted 2, Pakistan conducted 2 and North Korea conducted 4 I guess, or 6 by North Korea। ठीक है ना, तो ये क्लैट वालों के लिए। आई होप आपने ये पढ़ लिया, मतलब ये हो गया हमारा यहाँ पे खत्म। आई नो सेशंस लंबे हुए हैं बट यार थोड़े लंबे लंबे वाले ही थे।